ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਵਿਨੇ ਲਖਨਪਾਲ, ਦਿਵਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਿਕ ਵਰਮਾ, ਸੋਨੂ ਵਰਮਾ, ਮੋਦਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੌਲੀ ਵਰਮਾ, ਕੇਸ਼ਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਿਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1952 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉੱਨਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1978 ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਵਿਨੇ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿਵਯ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਿਰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ BJP ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮੁਦਿਤ, ਮੌਲੀ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
के कोई राम प्यारा शोर मचा मां गली पर। श्री महाराज कहते हैं जब बाबू का देहांत हुआ तो एकदम शोर मच गया। शक्ति लखनपाल जी का देहांत हो गया। बहुत धक्का लगा, सुनते ही इतना धक्का लगा एकदम पैरों से जमीन खिसक गई। क्यों? बहुत अच्छे थे, बड़े ज्ञानी थे, दुनिया के साथ में बड़ी भलाई किया। कहते हैं जीना है तो ऐसा जीना है कि मर के भी लोग याद करें। एक प्राणी मर जाता है, उसका नाम निशान खत्म हो जाता है। एक प्राणी मरता है, उसको जीते याद करना है, मरने पर भी लोग याद करते हैं कि बहुत अच्छे थे। संग सका सब कर गए कोई ना मिलो सा। श्री महाराज कहते हैं ये तो सत्य है, हर प्राणी को यहां से जाना ही जाना है। ये मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ कोई राजा आएगा, भिखारी आएगा, हर प्राणी की मौत हो जाए, अमर कोई नहीं रहेगा। आएगा जग में बुलावा हरि का, आएगा जग में बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जग में बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और नहीं कुछ जाएगा। जपना है सो जप ले बंदे, अंत काल पछताएगा। कहते कबीर सुनो भाई साधु, करने का फल पाएगा। तेरा ऐसा कर्म है ना, ये तो भुगतान करना पड़ेगा। कर्म को ना कोई भाई देता है, ना कोई बहन देती है। केवल प्राणी का कर्म प्राणी के साथ नहीं रहता। अंत में सब तेनों छड़ जाए, अंत में सब तेनों छड़ जाएंगे और कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे। अंत में सब तेनों छड़ जाएंगे। कहते हैं हम तुम्हारे साथ में मरेंगे, हम तुम्हारे साथ में जिएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं श्वास है तो आशा है। जब तक श्वास चला हुआ है, जब तक आशा रहती है, और श्वास खत्म होने पर रिश्तेदार भाई बंधु सब छोड़ देते हैं, तिल का तोड़ देते हैं। अंत में सब तेनों छड़ जाएंगे और कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे। जिन पुत्रों ने पारिया पुचकारिया, जिन पुत्रों ने पारिया पुचकारिया, घटियासी चादर तक तेरे पे पाएंगे। कहते श्वास तो चला गया है, घटियासी चादर तक तेरे पे पाएंगे। अंत में सब तेनों छड़ गए। अंत में कोई किसी का साथ नहीं देता है, देता है तो भगवान का, श्री राम का नाम साथ देता है। हम लोग संसार में क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, बोलते हो ना? बोलिए राम नाम सत्य है। ऐसे नहीं माना जाएगा, जोर बोलिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, वास्तव में सत्य है। भगवान कहते हैं मेरा नाम दुख में सुख में, मेरा रात में दिन में, हर समय जीते मरते मेरा नाम सत्य ही माना जाता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं मेरा नाम सत्य है। परंतु क्या है? कहते हैं ना, जब सुख आता है तो परमात्मा को भूल जाते हैं, और दुख आता है तो हम परमात्मा को याद करते हैं। ये कैसे कैसे हो गया? क्या हुआ? श्री भगवान कहते हैं मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, दुख अपने कर्मों से मिलता है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जैसे करे इसका फल चलता। हमारे ऐसा कर्म है, उसी प्रकार से हमको कष्ट मिलता है, हमको जीवन मिलता है, जौनी मिलती है। भगवान कहते हैं बारंबार आएगा बारंबार जाएगा, बारंबार आएगा बारंबार जाएगा। जौनी मिल जाएगी, मनुष्य जोनी बारंबार नहीं मिलेगी। ध्यान रखना बात को, मनुष्य जोनी बारंबार नहीं मिलती है।
मनुष्य उन्हीं कर्मों से मिलती है कि रे प्राणी, एक बार तेरे को जन्म मिला है, इससे तू कल्याण कर ले, आवागमन चक्र से मुक्त हो जा। स्वामी के बोलिए, जो कोई ऐसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे स्वामी के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे स्वामी के जो कोई ऐसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का फल। खाता यहाँ भी होता है, खाता तो सत्य है। कैसी प्राणी करनी करता है वैसा ही भुगतान करता, कर्तव्य सो भोग। भगवान ने हमको जन्म अच्छा दिया, हमको कर्म भी अच्छा करना चाहिए। भगवान ने हमको सोने को खाने को नहीं बनाया, भगवान ने बनाया मुख दिया श्री राम के लिए, परमात्मा ने मुख दिया सुमरण के लिए, और हाथ दिया कुछ दान के लिए, और पैर दिया भगवान प्रकम्मा के लिए। हम लोग मुख से राम नहीं कहते, हाथों से दान नहीं करते, और पैर से भगवान की प्रकम्मा नहीं करते। कहते रात गमाई सोए के दिवस गमाया खाए, हीरा जल अनमोल था, बंदे फिर पीछे पछताए। पीछे पछताना हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। बोलिए सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बोलिए सीताराम राम राम, 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 सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम राम राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम राम 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 राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम राम राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम राम राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम राम राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम राम राम। जोर से बोलिए सीताराम, सीताराम, सीताराम राम राम। बोलिए सीताराम, सीताराम, सीताराम राम राम। ओ सिया राम, सिया राम, सिया राम राम राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम राम राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम राम राम, ओ राजा राम, राजा राम, राजा राम राम राम, बोले राम के लाल की। परम आदरणीय शक्ति लखनपाल जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी इस अंतिम शोक सभा में सब लोग उपस्थित हमको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए। तो शक्ति लखनपाल जी जिनका जीवन एक प्रेरणा है, एक मिसाल है,
क्योंकि उन्होंने ना केवल अपने व्यवसायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया और 100% सभी जो उनके रोल थे इस जीवन में उसको निभाया उन्होंने। तो अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने फूल के समान रखा, ये सभी जानते हैं किस तरह उनका पालन पोषण किया, किस तरह उनको पढ़ाया लिखाया। और बेटों से बढ़कर अपनी दोनों बेटियों को वो चाहते थे, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे। और बेटियां उतनी ही समझदार है भगवान की कृपा से। बाप को फख्र होता है तो वो शक्ति लखनपाल जी वो हमेशा अपनी बेटियों पर नाज करते थे और वाकई में नाज के काबिल हैं। दिव्या, महक हमारी दोनों बेटियां जिन्होंने भी अपने बाप के प्यार को समझा, उसी तरह उनके जो उद्देश्य थे उनको पूर्ण कर रहे हैं बच्चे। और जो उनके दामाद हैं कैप्टन मनोज शर्मा जी और महेश जी, तो उन्होंने उनकी बेटों की कमी जो है वो पूरी की। वो दामाद नहीं, इस परिवार के बेटे ही हैं और हमेशा अपनी जो जिम्मेदारी उनकी थी उसको बेटों की तरह उन्होंने निभा रहे हैं। तो ये उनके संस्कार थे बेटियों में भी और आगे जो उनके दामाद हैं। और श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट जिसके साथ वो जुड़े, हम सब लोग जुड़े हैं, तो उसका जो पहला उत्सव हुआ वो भी भगवान सिद्धिविनायक जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, शक्ति लखनपाल जी के निवास स्थान से प्रारंभ हुआ। तो इतनी श्रद्धा और इतनी लगन से परिवार ने सेवा की, इतने सालों में 19 साल हो गए। और गणपति महाराज जी के चरणों में ही उन्होंने जो अपने आखिरी, हम कह सकते हैं कि जो 10 दिवसीय उत्सव था, सेहत ठीक हो ना होने के बावजूद भी उसमें उन्होंने पूरी ड्यूटी दी, जिस तरह से वो लगातार देते रहे और पूरा समय गणपति के दरबार में उन्होंने अपन लगाया। और गणपति महाराज जी की जो इच्छा, क्योंकि प्रभु की इच्छा के हम सब नतमस्तक हैं, जब जिसका समय निश्चित है किसी भी चीज़ का तो वो होती है। तो जीवन होना है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु वही जिसको व्यक्ति को बाद में भी उसके याद किया जाए, उसके अच्छे कामों के लिए, उसके अच्छे संस्कार के लिए। तो हमें तो बहुत कमी महसूस होगी, क्योंकि जब भी कोई काम होता था, कोई किसी तरह की भी गतिविधि होती थी, शक्ति जी को फोन करना कि शक्ति जी यहाँ जाना, तो उनका एक ही लफ्ज़ होता, जी मालिक। तो हम वो मालिक जो है उनको बहुत मिस करेंगे, याद करेंगे। कोई भी जितने सज्जन जानते हैं उनके एक पेट लफ्ज़ होता था, जी मालिक, आया मालिक, कहाँ जाना। मतलब ये दूसरा उन्होंने कभी, मैंने तो अपने जीवन में जितना मेरा उनके साथ संपर्क रहा है 25-30 साल का, तो वहाँ मैंने कभी उनके मुंह से ना नहीं सुनी किसी भी काम की, और किसी ने भी नहीं सुनी होगी जिनको वो जानते हैं, चाहे वो बैंक का काम हो, उठ के वो करते थे। तो लेकिन ये भी किसी में होता है कि जो उसकी क्षमता है उससे लोग वो किसी को अपना वो काम का योगदान दे सके। तो शक्ति जी में ये प्रतिभा थी और उसी लगन के साथ उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर जो भगवान का भव्य स्वरूप हम लोग कर पाए, तो बहुत बहुत योगदान शक्ति लखनपाल जी का, लखनपाल परिवार का। और गणपति महाराज जी कृपा करें परिवार पर और उनको ये दुख सहने की क्षमता दें, क्योंकि उनकी कमी को तो हम पूर्ण नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पारिवारिक सदस्य चला जाता है उसकी कमी हमेशा खटकती रहती है, तो महसूस होती रहेगी। लेकिन जो उनके काम है, जो उन्होंने शुरू किए हुए हैं, जिसमें चलते रहे, तो आप परिवार उसी तरह इतने सालों के साथ जैसे उनके साथ चलते रहे, आगे भी उनके योगदान को बढ़ाते रहेंगे। तो शक्ति जी हमेशा एक गीत गुनगुनाते थे कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी हस्ती है। तो ये पल जो होता था कि अगर उनसे बात हो नहीं, तो जैसे हम लोग किसी माहौल से जाते थे कभी, तो बोलते थे कि पल जो होता है जीवन में, हम अपनी आंखें बंद करें तो एक पल में हम रिवाइंड कर सकते हैं अपने जन्म से लेकर अब तक क्या हुआ। एक पल में, एक पल से भी शायद कम में हम रिवाइंड कर लेते हैं क्या हुआ। तो जिंदगी वाकई में एक पल की है, लेकिन उसको जो जी ले, अच्छी तरह से समझ ले जिंदगी के पर्सपेक्ट को, तो वही भगवान की हम कह सकते हैं कि देन है उस पर। तो शक्ति इस बात को भली भांति परिचित थे और दूसरों को भी समझाते थे कि जीवन जो है ये नश्वर है और इसको अपने सार्थक कामों, जो भी आप बढ़िया कर सकते हो समाज के लिए, परिवार के लिए, वो जरूर करें। जो आपको भगवान ने क्षमता दी है, अगर किसी का आप फायदा कर सकते हो, भला कर सकते हो, तो उसको जरूर करें। ये उनकी जिंदगी के नियम थे। तो हम भी प्रयास करेंगे उनके कदमों पर चलने का। सभी सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित हैं, मेंबर उपस्थित हैं। तो आज उनकी सभी की तरफ से श्रद्धा सुमन है स्वर्गीय शक्ति लखनपाल जी के चरणों में। तो मैं निवेदन करूँगा अब
हमारे बीच में श्री हेमराज जी अग्रवाल यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत लंबा साथ शक्ति लखनपाल जी के साथ रहा। वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्री हेमराज जी अग्रवाल। दूजे पंडित जी, माता शक्ति, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ महान शख्सियत याद करने वास्ते और प्रभु के चरणों के विच शरधा सुमन पेश करने वास्ते, परिवार में दुख साझा करने वास्ते आज इकट्ठे शक्ति लखन जी लखनपाल के बारे बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा गया। रविंदर जी ने बहुत डिटेल दे विच उन्होंने परिवार वास्ते उन्होंने कामों बारे दस्सिया। जिस तरीके दे नाल उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच विचरे है, जिथे कि आप कहने अपने घर दे विच लड़का जरूर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियां अपनी लड़की समझ के पालिया है, तो उन्होंने भी अपने परिवार ने उन्होंने बहुत सेवा की है। उन्होंने हर पासे चाहे धार्मिक, चाहे समाजिक, चाहे राजनीतिक पक्षों हर जगह के उत्ते उन्होंने अपनी जगह बनाई है परिवार ने। और मैनू याद है थोड़े जे समय की गल है, मेरा ख्याल है पिछले महीने ही गणेश उत्सव से उन्होंने नाल रवि के मास्टर जी ते वो आए मेरे को घरे, तो बैठे तो मैं उन्होंने पछाण नहीं सका। जदों उन्होंने बोले तो मैं कह लखनपाल जी क्या हुआ, तो जी सेहत थोड़ी कितना पछाण च ही नहीं आ रहे। कहती मैं साल 1.5 साल तो काफ़ी बीमार रहा, लेकिन हुण मैनू गणेश जी ने शक्ति दी है भी मैं तुहाडे कोले जरूर होके आवां ते और मैनू, क्योंकि इस उत्सव इन्नी गणेश जी की उन्होंने कृपा सी। उन्होंने बहुत ही साडे इलाके दे विच अपना नाम कमाया है, क्योंकि वो साडे बहुत ही चाहे सियासी तौर पर असी थोड़े बहुते जो विचार से एक दूजे तो बखरे सी, लेकिन जिथे तक जाति तौर पर उत्थे उन्होंने जाना साडे वास्ते एक बहुत दुखदाई घटना है। परिवार वास्ते है ही, लेकिन सानू जरूर महसूस होंदा रहूगा सारी जिंदगी भी वह जिहा इंसान बनना, उन्होंने बोल चाल हमेशा खुश होकर मिलना, तो एक उन्होंने बहुत बड़ी सिफत सी। मैं तो परमात्मा के चरणों के विच यही प्रार्थना करता कि उस पवित्र आत्मा को अपने चरणों के विच निवास देवे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति देवे। ओम शांति शांति। बुजुर्गों से शक्ति लखनपाल जी बारे मेरे तो पहला बोलते हैं हेमराज जी और रवि जी ने बहुत कुछ दसा। मेरा जिहड़ा संपर्क शक्ति जी नाल होया 1980 बैंक दे विच सीगे, यूनियन बैंक केसरगंज मंडी चौक, और मेरा ख्याल है शायद उस वेले भी नॉर्थ इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के सैकटरी से।
और मैं ये समझा करता सी कि शायद ये कम्युनिस्ट ने। मैं उस वेले मैनू ऐसा लगता सी, कोई मेरा इन्हां दा सीधा सीधा संपर्क नहीं सी, लेकिन मेरा अकाउंट उस ब्रांच में सी। कदे मैंने पूछा नहीं तुसी किसी राजनीतिक पार्टी नाल जुड़े हो, लेकिन एक धारणा होगी है यार बैंक एम्प्लॉय ज़्यादातर ना कम्युनिस्ट ही ने, वही धारणा मेरे मन से। तो समय निकलता गया, बैंक से जाना, 10 मिनट नौकर कदे बैठना, कोई सलाह भी देते सी, लेकिन संगठन के किन्ने माहिर से संगठन को चलाने दे। जिस वेले म्यूनसिपल कारपोरेशन लुधियाना के पहले चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर एक वार्ड ऐसा सी जिहदे भारतीय जनता पार्टी की सिर धड़ दी बाजी सी। चौधरी साहब को मेयर बनाना सी, मेयर के वास्ते खड़ा किया सी, और साडे ही कुछ लोग अंदरों गति गड़बड़ कर रहे थे। उस स्थान के उत्ते मैं पहली बार देखा शक्ति लखनपाल जी ने दिन रात एक करके उस सीट का रिजल्ट कर। इस करके मैं कहती संगठन ऐसा व्यक्ति बैंक एम्प्लॉय होंदा, बैंकों की बैंक के एम्प्लॉयज की सेवा लिए भी काम करता है, परिवार के लिए भी समय देता है और पार्टी लिए भी समय देता है। और उस चुनाव तो बाद मेरा इन्हों का संबंध धीरे 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 बढ़ता गया। सही मैंने एक व्यक्ति ऐसे कर्मयोगी व्यक्ति किया जाता है। आप कर्मयोगी हरिक दे मगर ला देने कई बार, लेकिन सही मैंने शक्ति लखनपाल कर्मयोगी व्यक्ति सबनों नाल लेके चलती अद्भुत क्षमता सी और अपनी गल बेवा कह रही ये भी दम रखते सी। एक चुनाव रविंदर अरोड़ा जी लड़े सी, कुछ कमियां रही उत्थे, ਉਹਦੇ बारे इन्होंने बिठा करके मैनू डॉक्टर साहब प्रधान सी साढ़े जिले में, मैं उपाध्यक्ष सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ आम कार्यकर्ता आम व्यक्तियों गल करता नहीं, एनी सूझबूझ लेकिन जेड़ा आया है उसने जाना है। परिवार को तो एक आटा होया और एक आटा भरिया नहीं जा सकता। बेटा या बेटी इसमें कोई फर्क नहीं है। कहते हैं अगर मां चली जाए तब घर का आंगन सुना हो जाएगा, अगर पिता चला जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और खासकर बेटी को उदों तक गुमान होंगे दंभ करती है अपने पिता दे से, जायज नजायज भी कहने की हिम्मत करती है अपने पिता दे से। और कई बार असी माँ बाप को समझ नहीं पाते। व्यक्ति के जीवन की जड़ होंगे माँ बाप, उन्होंने जान तो बाद जी कमी खलती है। अज जो शक्ति लखनपाल जी ने जान तो बाद परिवार को भी खलेगी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऐसा एक अमूल्य खीरा खोया, अपना ऐसा कार्यकर्ता खोया जो कमी पूरी नहीं की जा सकती। सानू भी काटा है और एक काटा कभी पूरा नहीं होएगा, लेकिन खोगे वही जो राम रची रखा बहुत सोचा है। फिर भी समझता है कि वो जितना भी जीवन जिए, चाहे बैंक ने अपने साथियों लिए काम किया, चाहे समाज लिए काम किया, पार्टी लिए काम किया, और खासकर सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट जिहड़ा उन्होंने रोल सी। मैनू नहीं पता उन्होंने प्रधान कौन है, सैकटरी कौन है, मैं तो जानता सी रवि जी खड़े हैं मेरे पास।
कदे मैं अगर गया मंदिर के अंदर, रवि जी होंगे सी, शक्ति जी होंगे सी, साढ़े अरुणा जी भी अज नहीं रहा। ये सारे लोगों ने मिल करके उस इलाके से जो धर्म की गंगा बहाई, ਉਹਦੇ भी शक्ति जी का एक बड़ा हाथ सी। और गणपति उत्सव होना तब वो समझ लो कार्यक्रम शुरू होने को लेके अंत तक अपनी पूरी हाजिरी उत्ते पूरी सेवा रख। और मैनू अज इस गल का बड़ा, इस बारी 8 तरीक को मेरा जन्मदिन से, मैं जब उत्थे गया मैनू इस सारे ट्रस्ट ने बड़ा प्यार दिता उसे, लेकिन शक्ति जी ने विशेष तौर पर जिस तरह मैंने बांझ पढ़ के गले में लाया वो मैं भूल नहीं सकता। सो अंतरिक्ष बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां सुनाते सुनाते। मैं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी वालों अपने परिवार इन्होंने चरणों श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और पीछे परिवार के मुरे में बेनती करूंगा कि एक महापुरुष से कर्मयोग से सामने जाना, जो आया है सो जाएगा। दुख होता है लेकिन ज्यादा शोक नहीं करना, इन्होंने दसे हुए मार्ग से चलना, जिसका सारा जीवन स्वयं से जुड़े दोनों की सेवा करते रहे। उसी प्रकार पीछे परिवार भी चले इन्होंने पूर्णे थे। और भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक पार्टियों का कहती है कांग्रेस पार्टी, अकाली पार्टी, फलानी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शब्द इस्तेमाल हुआ भारतीय जनता पार्टी परिवार। सो असी थोड़े परिवार के शक्ति जी के रहते भी इससे अज भी हैं और अगे भी इसी टाइम भी सानू याद करोगे। वैसे तो सारे लोग इतने बहुत बड़े बड़े बैठे, मास्टर जी बैठे, बाबा जी बैठे, अनेक साथी हमारे बैठे, फिर भी असी जिस समय भी सानू जिस टाइम भी परिवार याद करेगा असी नाल खड़े मिलांगे। परंतु इसमें परमात्मा को बेनती करता है कि शक्ति जी को आवागमन तो मुक्ति देके अपने चरणों स्थान में। ओम शांति। हमने एसोसिएशन यानी बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इकट्ठे बहुत काम किया। मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया था। कभी कहीं जाना है, बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं जाना है मीटिंग, तो कभी भी इन्होंने मुझे ढूंढने भी नहीं दिया कि कहीं रात काटनी पड़ गई कहीं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बना लिया कि ये वहाँ पर रुक जाएंगे, वही मेरे जानकार है वहाँ चले। तो यूनियन बैंक में वो ऑल इंडिया असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने यूनियन बैंक समाज की सेवा की और बहुत लंबे अरसे तक हमारे यूनियन बैंक परिवार में ये नॉर्थ के जनरल सेक्रेटरी रहे। और रिटायरीज एसोसिएशन जो हमारी इधर नॉर्थ में बनी हुई है उसमें उन्होंने बहुत योगदान दिया। मैं अक्सर कई बार उनके पास घर कई सजेशन लेने के लिए चला जाता। मेरे से उनकी उम्र बहुत कम थी, तकरीबन मेरा ख्याल 10-12 साल मेरे से छोटे थे, पर फिर भी मैं उनसे कई सजेशंस लेने के लिए घर चला जाता था। उनकी सेहत की वजह से वो आना जाना थोड़ा मुश्किल लगता था, पर उनकी सजेशंस को मैं अपना एसोसिएशन में अपने सज्जन जो मित्र थे वो भी बहुत प्रशंसा करते थे कि ये सजेशन अगर शक्ति जी ने दिए हैं तो ठीक है। तो सज्जनों, इस पर्सनैलिटी के बारे में
बहुत कुछ, यानी ही वॉज ए डिवोटेड, इतने डिवोटेड मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई इंसान देखा नहीं। अपने जो मेरे सज्जन हैं उनमें से ही वॉज वेरी डिवोटेड, वेरी हेल्पफुल। और जैसे यहाँ सज्जनों ने बताया कि भाई वो एक शब्द जो बोल देते थे वो अक्सर मेरे को भी कहते थे, पर मेरे को अपने बड़े भाई के तौर पे ट्रीट करते थे हमेशा। मैं दुख इतना है कि कुछ कहने में आगे असमर्थ हूँ, मगर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ने अपने चरणों में निवास किया और पीछे सभी सज्जन जो उनके नज़दीक हैं, परिवार हैं, उनको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। हमारी एसोसिएशन की तरफ से जो यूनियन बैंक रिटायरीज एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी एक हमने संदेश में कंडोलेंस मैसेज दिया है। मगर इस मेरे छोटे भाई का चले जाना इस समय बहुत महसूस होता है। इसकी भी यानी मैं अपने हार्ट फेट से कहता हूँ कि भाई ये बर्दाश्त से बाहर है। इस अभी इसका इनका जाना हमारे लिए बहुत दुखदाई है और हमें इनकी ज़रूरत थी, हमारी एसोसिएशन में ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं अपना यानी ईश्वर से हर टाइम पे यही दुआ करता रहता था कि शकील कुमार ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते अपनी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी इन्हें बनाना चाहता था कि मैं अब मेरी एज हो गई, मैं इससे इनको अपना सौंप के आप फार्ग हो जाए, पर इसको क्या मंजूर, यही मंजूर था। तो सज्जनों, मैं तो यही परमात्मा से यही दुआ करता हूँ प्रभु को अपने चरणों में निवास और इससे साथ परिवार को ये जो इररिपेरेबल लॉस है इसको सहने की शक्ति राम जय देगा। लेकिन यहाँ पंडित जी के प्रवचन सुनकर, जिन महापुरुषों ने जहाँ बोला है उनकी बातचीत सुनकर शक्ति जी के बारे में इतना ज्ञान दिया हुआ कि मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि मैं किसी ज्ञान सभा में आ चुका हूँ। मुझे रवि जी ने हुक्म दिया है कि ज़्यादा समय नहीं लेना, हम तो बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन शक्ति जी की मैं क्या बात करूँ कि सिर्फ करा शक्ति वीर तेरे कि सिर्फ करा शक्ति वीर तेरी जो मैं छोड़ न सकता वो राह से। इतनी गहराइयों के भरे हुए थे, मेरे साथ तो बैठ के इनकी बातचीत होती रहती थी, बस इनने मुझे बता देना, मैंने इनकी सुन लेनी। और इतनी तब्दीली आई मुझ में, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो 2 मिनट में लड़ाई कर लेता था, किसी ने कोई बात कही नहीं और झगड़ा हुआ, लेकिन इन्होंने मेरे अंदर तब्दीली ला। तो मैं आपके लिए यही कहूँगा कि छां दे वांगू छां है जिंदगी, असल दे अंदर तां है जिंदगी, वो जाके भी जिदा ना है जिंदा, उस जिंदगी का ना है। शक्ति जी, आपने उस गति को प्राप्त किया, प्रभु की तरफ तो आपको गति मिल चुकी है। जो आपने गणेश उत्सव में सेवा करी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों, फिर भी मैं आया करता था और इनका मैंने देखी कुर्बानी की। शक्ति लास्ट दिन से 1 दिन पहले परिवार के साथ 52,000 का हार लेकर आए, सारे परिवार ने वहां डाला। कितनी श्रद्धा थी इनकी। तो शायद इनकी गणेश जी से ये तय हो चुका था गणेश जी के, शक्ति जी मैं आपको इस उत्सव के दरमियान दिक्कत नहीं आने दूंगा, लेकिन अब आपने बहुत कष्ट पा लिया, क्योंकि मैंने देखा है सचमुच कष्ट पाया है। दयानंद की फाइल मैंने सारी पढ़ी है, परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी सेवा करने में। तो आई कि आपने बहुत कष्ट पा लिया है, अब मैं आपको और कष्ट नहीं पाने दूंगा। तो भाई मेरे ऊपर पाबंदी है कि मैंने बहुत समय नहीं देना है। तो सिर्फ बहुत से शौक प्रस्ताव आए हैं, अगर कोई शौक प्रस्ताव रह जाए तो मैं बुरा नहीं मानना, क्योंकि बहुत सारे शौक प्रस्ताव आए हैं, जिस पढ़ते पढ़ते भी काफी समय लग जाएगा।
पहले हम यहाँ बैठे हैं, श्री नवदुर्गा मंदिर ट्रस्ट रजिस्टर उनके द्वारा पहला शौक प्रस्ताव आया है। सिद्धि विनायक मंदिर जिसके ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और हर समय फाइनेंस मिनिस्टर तो थे ही थे, लेकिन किसी काम में पीछे नहीं हटे। सिद्धि विनायक ट्रस्ट की तरफ से राजेंद्रा सीनियर मॉडल स्कूल रवि जी खड़े हैं। ज्ञान स्थल मंदिर मैसर एमएस पूनम स्टेट श्री जोगिंदर मित्तल जी प्रेसिडेंट हैं। यूनियन बैंक की तरफ से जो अभी प्रधान जी बोल गए हैं, जोगिंदर मित्तल, यूनियन बैंक। श्री गणेश महोत्सव कमेटी दुर्गापुरी श्री राम कुमार जी दसरा प्रधान। रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन हेडक्वार्टर मिनी सेक्रेटरीट जिसके लिए मैं सेवादार खड़ा हूँ। और मैं बता दूं आपको कि हमारी आज नागपुर में मीटिंग है, तो मुझे जाना था। पास मेरी जेब में रिजर्वेशन हुई है नागपुर की, लेकिन भाई मैंने साथियों से कहा नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे तो अपने भाई को श्रद्धांजलि देने जाना है। तो उनसे कहा कि मेरी तरफ से आप ही वहाँ सब कुछ कर लेना और आके मुझे बता देना। सोशल वेलफेयर एसोसिएशन लाजपत नगर नियर बस स्टैंड लुधियाना, मैं हूँ सेवादार। गणेश दरबार मंदिर जसिया रोड लुधियाना, राशि अग्रवाल जी पहुंच चुके हैं, उनकी तरफ से भी शौक प्रस्ताव भी है। शायद उन्होंने पहले भेज दिया कि किसी अड़चन की वजह से ना पहुंच सके, तो बाबू हेमराज जी पहुंच चुके हैं। काउंसलर सुरेंद्र अटवाल जी, फिर भी मैं बेनती करूं कि नाम रह जाए तो बुरा नहीं मानना। राजी जी काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस कमेटी मनीषा जी प्रधान, भारत विकास परिषद अशोक कुमार शर्मा जी प्रधान, और खन्ना साहब आए जो हमारे गणेश उत्सव के बहुत बड़े मेंबर हैं, हर बार आते हैं, बहुत सेवा करते हैं। श्री संकट मोचन धाम भवन संतोष शर्मा जी। सभी की जो भावनाएं हैं वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने नाम उतार ली है। भावना वो एक ही होती है कि प्रभु आपको अपने चरणों में निवास दे और पीछे को सहन शक्ति प्रदान करे। तो हैपोवाल महोत्सव कमेटी श्री अश्वनी भागी जी प्रधान, और रोहित सिक्का जी एक्स काउंसलर, श्री गणेश सेवा परिवार भूपिंदर जी प्रधान। और भाई कोई रह गया हो तो मुझे क्षमा देना, क्योंकि नाम मैंने सोचा था थोड़े होंगे, लेकिन यहाँ तो सारा लुधियाना इनके लिए आया है, क्योंकि ये सभी के थे। तो भाई हम जिसको समय ना दे पाए, जिस महानुभाव को, तो वो हमें क्षमा करे, क्योंकि समय पहले ही पहुँच चुका और मैंने विनती करके 2-4 मिनट लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनका आना, परिवार का इस घड़ी में ढाल बनाना, वो आपका एक सिर माथे पे परिवार के, और परिवार की तरफ से श्री सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट को शक्ति जी की याद में, स्मृति में जो माया भेंट की जा रही है उनके चरणों में निशावर है, क्योंकि इनका दिया ही सब कुछ है। इनकी जो मेहनत है, इन्होंने अपना तन मन धन जिसको कहते हैं, वो श्री सिद्धि विनायक मंदिर को अर्पित किया इतने सालों से, और भगवान सिद्धि विनायक जी के चरणों में ही विराजे हैं जाके। और जो परिवार है पीछे, हम सब एक परिवार ही हैं, तो भगवान सिद्धि विनायक जी सभी को शक्ति दें। तो इस दुख की घड़ी में हम सब लोग परिवार के साथ हैं, और आगे भी इसी तरह परिवार उनके लिए हुए जो कार्य छूट गए हैं उनको पूर्ण करें साथ साथ। तो यही चरणों में प्रार्थना है। और अब आदरणीय पंडित जी, उनकी याद तो हमको आती रहेगी। जैसे वो सज्जन थे, प्रथम नाम में क्या लगा, शक्ति लखनपाल जी। शक्ति थी जो सबको साथ में लेके चलते थे, सबसे प्रेम करते थे। आज वही लोग याद करते हैं। जीना है ऐसे लीजिए जो लोग याद करें। आइए, कई दिनों से गुरु पुराण का पाठ चला हुआ, भगवान जी कहते हैं करो। माता पिता के देहांत होने पर पुत्र को क्रियाकर्म विधि ना कराना चाहिए और गुरु पुराण का पाठ सुनाना चाहिए। जो पुत्र ऐसा करते हैं, गुरु पुराण का पाठ नहीं सुनाते हैं, क्रियाकर्म विधि से नहीं करते हैं, उनके हाथ का जल एक देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं, उनके हाथ का भोजन देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। पुत्र को मरने पर क्रियाकर्म विधि के साथ करना चाहिए। इस पिता ने लालन पालन किया है, उस पिता को, माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार से
गरुड़ पुराण सुन करके गरुड़ जी चुपचाप हो गए कि भगवान मैं धन हूं, आपके मुखार में से मैंने गरुड़ पुराण जी को सुना। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं उषा हूँ किशार, तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं उषा हूँ किशार। तू चरणों से अब